In this presentation, we are going to do certain questions related to the addition theorem of probability. So again, let us just briefly revise. Addition theorem of probability is applicable in two situations: in case of mutually exclusive events and in case of the events that are not mutually exclusive. So in this presentation we are going to do the questions related to the mutually exclusive events, जो कि दो events एक साथ होने की कोई possibility नहीं है. So let us read first the simple questions. A card is drawn from a pack of 52 cards. What is the probability of getting either a king or queen? Right? So we have to see the language of the question. Either a king or a queen. So that means we want to know the probability of occurrence of either A or B. What is A and what is B वो हमें define करना है. So PA we are taking as the probability of getting a king. The probability of getting a king, and B we are taking as the probability of getting a queen, right? So when we write the probability of B, PB is equal to the probability of getting a queen. सो नाउ वी आर आस्क्ड कि ये क्या संभावना है कि या तो वो किंग होगा या क्वीन. तो अब हमें पता है कि एडिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग किंग के होने के कितने चांसेस हैं और क्वीन के होने के कितने चांसेस हैं. अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो वही हमारे लिए फेवरेबल केसेस हैं, क्योंकि अगर किंग आएगा तो भी सक्सेस माना जाएगा और अगर क्वीन आएगा तो भी सक्सेस माना जाएगा. तो जो कार्ड है उस पर अगर किंग बना है तो भी हमारे लिए सक्सेस है और क्वीन है तो भी सक्सेस है. सो वी हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ये हमारे इवेंट्स हैं जो हमने डिफाइन कर दिया, दैट इज पी ए प्लस पी बी. अब दूसरा सवाल ये है कि क्या किंग और क्वीन एक साथ आ सकते हैं. द आंसर इज नो. तो एक साथ नहीं आ सकते, इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो सिंपल हमारा रूल है कि पी ए और बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी. सो पी ए इज व्हाट, 4 किंग होते हैं एक पैक ऑफ कार्ड में, तो 4 हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज 52. अगेन क्वींस भी 4 कार्ड्स होते हैं, we have 4 favorable outcomes and the total number of outcomes is 52. So if we have P, A और B, इसको हम क्या लिखेंगे, is equal to P A is 4 by 52 and P B is again 4 by 52. So we get here 8 divided by 52 is equal to 2 divided by 13. So this is the probability of getting a king or a queen, right? So this was a simple example where we can see how we apply the addition theorem in case of mutually exclusive events. मतलब अगर हमें ये पता लगाना है कि एक इवेंट होगा या दूसरा होगा, दोनों की क्या संभावना है, तो उसमें हमारे लिए पहला इवेंट भी सक्सेस है और दूसरा इवेंट भी सक्सेस है. तो सक्सेस का मतलब है कि जो हम चाहते हैं वो होगा या नहीं. तो हम जो चाहते हैं ए अगर होगा तो भी हम सक्सेस मानेंगे और बी होगा तो भी हमारे लिए सक्सेस है. तो दोनों की जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज है उसको हम ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी या तो ए होने की या बी होने की, क्योंकि ऐसी कोई संभावना नहीं है कि पी जो ए और बी है वो एक साथ हो जाए. इसलिए हमें जो है सिर्फ ए की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी और बी की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देना है. सो हमारी टोटल पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी कि ए का होना भी सक्सेस और बी का होना भी सक्सेस. तो ए और बी, या तो ए होगा या फिर बी होगा, दोनों के मिला के चांसेस क्या है. सो दैट इज द सिंपल रूल ऑफ एडिशन थ्योरम. नाउ लेट अस टेक स्लाइटली typical questions which are not as straight like this question was. I am reading out one example here. An investment consultant predicts that the odds against the price of a certain stock will go up during the next week are 2:1. राइट. तो यहाँ पर अगेन आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे तो यू हैव टू बी वेरी
clear about terms like odds in favor, odds against the occurrence of an event, right? So odds in favor, let us just write what is given first. An investment consultant predicts that odds against the price of a certain stock will go up. So the event is stock price will go up, मतलब किसी शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, इसके जो है odds against is given to you. The odds against the price of a certain stock will go up during the next week are 2:1, and the odds in favor of the price remaining the same. Second event क्या है? Price remaining the same. Price remaining same. Odds in favor are 1:3. 1:3, right? So this is given to you in the question. We will again understand this when we solve it. Let us first complete the question. So these are the odds against the price of a certain stock going up and the odds in favor of the price remaining the same. What is the probability that the price of the stock will go down during the next week? Right? So the question is, what is the probability? We have to find out the probability that the stock will go down. Stock will go down. And when we solve the questions, it is very important to define everything that we are writing. So we want to know the probability of the stock price going down. So this is asked from you. So this is question mark because this is the answer that we have to look for when we solve this question. तो सबसे पहले देखिए कि जो स्टॉक प्राइस है वो बढ़ेगा, स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा. ऑड्स अगेंस्ट कितने हैं? 2:1. ऑड्स अगेंस्ट का क्या मतलब होता है कि इसके खिलाफ, अगेंस्ट मतलब हम कह रहे हैं कि स्टॉक प्राइस विल गो अप, तो अगेंस्ट का मतलब है कि वो नहीं जाएगा ऊपर, राइट? तो ये हमेशा एक रेशो होती है. इसमें आपको ये जो 2:1 दिया हुआ है, ये एक रेशो है, तो हमारे को यहाँ पे दो वैल्यू मिलेंगी, 2/3 एंड 1/3, राइट? सो ऑड्स अगेंस्ट का क्या मतलब है कि पहले जो नंबर आएगा वो उसके अगेंस्ट वाले की रेशो है. मतलब क्या चांसेस हैं कि जो प्राइस हमारा ऊपर जाएगा, ये इसके अगेंस्ट प्राइस ऊपर जाएगा. अगर फेवर में होता तो हम कहते कि 2/3 चांस है. अगर ये ऑड्स अगेंस्ट की बजाय यहाँ पे लिखा होता ऑड्स इन फेवर, मतलब जो पहले नंबर आ रहा है वो फेवर में जो पॉसिबिलिटी है वो दिखा रहा है और जो दूसरा नंबर है वो अगेंस्ट की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है. लेकिन हमने यहाँ पे ऑड्स इन फेवर नहीं लिखा, हमने लिखा है ऑड्स अगेंस्ट. ठीक है, तो दोनों को बहुत ध्यान से समझना होता है आपने. स्टॉक प्राइस विल गो अप, ठीक है, प्राइस ऊपर जाएगा. इसके अगेंस्ट क्या संभावनाएं हैं वो हमें पहले दिख रही हैं इस रेशो में. तो इसके अगेंस्ट कितनी संभावना है? 2/3. मतलब 3 में से 2 चांस ऐसे हैं कि जो स्टॉक प्राइस है वो ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऑड्स अगेंस्ट है. अगर ऑड्स अगेंस्ट लिखा होता है तो पहला नंबर उसके अगेंस्ट जाता है, मतलब उसके ना होने की संभावना को दिखाता है. यहाँ पे हमारा स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, ये हमने इवेंट लिखा है. इसके अगेंस्ट ऑड है, मतलब कि स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जाएगा. तो स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, उसकी क्या संभावना है? 2/3, राइट? तो ये अगेंस्ट वाली वैल्यू पहले आएगी अगर हमने लिखा है ऑड्स अगेंस्ट, और फेवर वाली वैल्यू दूसरी होगी. मतलब फेवर में क्या है कि हमने अगर लिखा है कि स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, तो हाँ वास्तव में स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, उसकी क्या संभावना है? 1/3. दिस इज हाउ वी राइट दिस रेशियो ऑफ ऑड्स इन फेवर एंड अगेंस्ट. जो भी हमने लिखा है, अगर ऑड्स अगेंस्ट लिखा है तो अगेंस्ट वाला नंबर पहले आएगा, और अगर फेवर लिखा है तो फेवर वाला नंबर पहले आएगा. तो अगर अगेंस्ट भी दिया हुआ है तो हमें अगेंस्ट और फेवर दोनों पता चल जाते हैं, और अगर इन फेवर भी दिया हुआ है तो भी हमें अगेंस्ट और फेवर दोनों पता चल जाते हैं. सिर्फ हमें ये चेक करना होता है कि अगर ऑड्स अगेंस्ट लिखा है तो उसके ना होने का नंबर संभावना पहले आएगी,
और होने की बाद में, और अगर इन फेवर लिखा है तो उसके होने की संभावना पहले आएगी और उसके ना होने की संभावना बाद में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ऑड्स अगेंस्ट लिखा था तो उसके ना होना मतलब टू, ये प्राइस विल नॉट गो अप, राइट, तो नहीं जाएगा प्राइस ऊपर, वो पहले लिखा हुआ है। तो नॉट गो अप क्या है 2/3, और इट विल गो अप क्या है, क्योंकि वो इन फेवर वाला बाद में आएगा, क्योंकि ये ऑड्स अगेंस्ट था तो फेवर के कितने हैं 1/3, तो 1/3 चांस है कि प्राइस ऊपर जाएगा। अब इसी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि दूसरा इवेंट है कि स्टॉक का प्राइस सेम रहेगा, स्टॉक का प्राइस सेम रहेगा, इसके ऑड्स इन फेवर क्या है, फेवर अब इन फेवर लिखा है, ऑड्स इन फेवर मतलब पहले वो चांस बताएगा कि प्राइस सेम रहेगा। इवेंट पहले हमारा जानना जरूरी है और उसके ऑड्स इन फेवर हैं या ऑड्स इन अगेंस्ट कितने हैं वो सेकंड पॉइंट है। तो डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन कि आपको क्या लिख के दिया हुआ है कि ये ऑड्स इन फेवर है या ये ऑड्स अगेंस्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम पता लगाएंगे कि कितना चांस है कि वो इवेंट होगा या कितना चांस है कि वो इवेंट नहीं होगा, ठीक है। तो अब इवेंट हमारा क्या है, स्टॉक के प्राइस का सेम रहना, कि स्टॉक का प्राइस सेम रहेगा। इसके ऑड्स इन फेवर क्या है 1:3, तो ऑड्स इन फेवर बेशक लिखा है लेकिन ये बताता दोनों है, फेवर भी और अगेंस्ट भी। ऐसे ही अगर अगेंस्ट लिखा होता है तो भी लिखते हम अगेंस्ट, लेकिन वो बताता दोनों ही है, अगेंस्ट भी और फेवर भी। तो यहाँ पे फेवर वाली वैल्यू पहले आएगी, तो इट विल रिमेन द सेम, सेम रहेगा, उसका चांस पहले लिखा होता है 1/4। तो टोटल जो हमारी रेशो है वो 1:3 है, तो 1/4 चांस है कि वो सेम रहेगा और 3/4 चांस है कि वो चेंज हो जाएगा, कि वो सेम नहीं रहेगा, राइट। सो इट विल नॉट रिमेन सेम, उसका कितना चांस है 3/4, और सेम रहेगा उसका कितना चांस है 1/4, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव रिटन हियर, you can see here। तो it is very important to read this question correctly, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन ही गलत समझा है तो आगे सॉल्यूशन ठीक नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान से ये समझना है कि ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन अगेंस्ट को कैसे रीड करना है। तो किसी भी इवेंट के ऑड्स अगेंस्ट अगर दिए हुए हैं तो वो हमेशा एक रेशो होगी, ऑड्स इन फेवर भी हमेशा एक रेशो होगी। उस रेशो में से पहला वाला जो नंबर है वो फेवर का है या अगेंस्ट का, वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपको कैसे दिया हुआ है। कि ऑड्स अगेंस्ट अगर दिया हुआ है तो पहला नंबर उसके खिलाफ जाता है और दूसरा नंबर उसके फेवर में, और अगर ऑड्स इन फेवर दिया हुआ है तो पहला नंबर उसके फेवर में जाता है और दूसरा नंबर उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो अभी तो हमने सिर्फ इस क्वेश्चन में जो जानकारी दी हुई थी वो लिखी है। अब जो वास्तव में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है कि ये प्रोबेबिलिटी बताइए कि ये जो स्टॉक प्राइस है वो नीचे चला जाएगा, इसकी क्या संभावना है, ठीक है। तो हमें पता है कि टोटल मिला के सभी पॉसिबिलिटीज क्या हैं, सारी पॉसिबिलिटी क्या है, या तो स्टॉक का प्राइस सेम रहेगा या स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा या स्टॉक का प्राइस गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो चीजों को लिखा है कि स्टॉक का प्राइस का बढ़ना और स्टॉक के प्राइस का सेम रहना। तो टोटल जितनी भी हमारी संभावनाएं होती हैं उन सबको मिला के प्रोबेबिलिटी 1 आती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं लूँ यहाँ पे, इफ आई टेक द 3 इवेंट्स, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इफ आई टेक ए एंड बी, राइट। सो व्हाट इज गिवन टू अस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको हमने कैसे डिफाइन किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मीन्स ए इज द इवेंट, ए द स्टॉक प्राइस विल गो अप, स्टॉक प्राइस विल गो अप। सो ए अगर स्टॉक के प्राइस का ऊपर जाना है तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है या क्या प्रोबेबिलिटी है, वो हमने देखा है यहाँ पे कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, प्राइस का ऊपर जाना उसकी संभावना कितनी है 1/3। तो ऑलरेडी चांस आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड ए मीन्स द स्टॉक प्राइस विल गो अप। ए को हमने कैसे डिफाइन किया है, द स्टॉक प्राइस विल गो अप। Then we will write the probability of occurrence of B. B is what? The stock price will remain the same. B को हमने कैसे define किया है, stock price will remain same. The stock price will remain same. So that is already given to us. Price remaining the same, उसके फेवर में हमारे जो कितनी संभावनाएं हैं, that is 1/4.
ठीक है। तो अगर हमें ये पता लगाना है कि प्राइस हमारा नीचे जाएगा, नीचे जाने का मतलब है कि ना तो वो ऊपर जाएगा और ना ही वो सेम रहेगा, प्राइस गिरेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक प्राइस गोइंग डाउन, जो हमारा क्वेश्चन था, स्टॉक प्राइस विल गो डाउन, इज इक्वल टू 1 माइनस ये दोनों 1/3 प्लस 1/4। इसको अगर हम पहले उसी डिनोशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो 1 माइनस, आई शुड राइट हियर, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए और बी पी बी, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे। अब इसका मीनिंग आप एक बार पहले समझिए। द सॉल्व करना इज नॉट डिफिकल्ट, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग इज इम्पॉर्टेंट। अब हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो स्टॉक प्राइस है हमारा दैट विल गो डाउन, मतलब तो अगर हम पूरे 1 में से वो संभावनाएं हटा दें कि प्राइस सेम रहता है और प्राइस आपका ऊपर जाता है, तो इन दोनों को हटाने के बाद किसकी प्रोबेबिलिटी बच जाएगी, दैट द प्राइस विल गो डाउन, क्योंकि 3 ही पॉसिबिलिटीज है, सेम रहना, ऊपर जाना और कम होना। तो हम इंक्रीज होने की और सेम रहने की प्रोबेबिलिटी अगर हटा दें 1 में से, तो हमारे पास क्या बच जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्राइसेस गोइंग डाउन। तो वही चीज हमने यहाँ की है कि 1 माइनस पी ए और बी, ए और बी की अगर हमने हटा दी पॉसिबिलिटी, तो हमारे पास किसकी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बच जाएगी, दैट इज ओनली ऑफ द प्राइस गोइंग डाउन, और वही हमारा क्वेश्चन है। तो ए और बी अगेन हमें चेक करना है कि ए और बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि प्राइस अगर बढ़ेगा तो वो सेम नहीं रह सकता, और अगर सेम रहेगा तो वो बढ़ नहीं सकता, दोनों में से एक ही हो सकता है। तो पी ए और बी, यहाँ पे फिर से हमारा एडिशन का रूल लग जाएगा। तो पी ए की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3 और बी की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी इन द फॉर्म ऑफ ऑड्स अगेंस्ट एंड ऑड्स इन फेवर की जानकारी देते हुए हमें ऑलरेडी ये प्रोबेबिलिटी बता दी गई थी। तो अब हमारा काम है यहाँ से 1 में से वो संभावनाएं हटा देना कि ए होगा या बी होगा। तो वी हैव रिटन 1/3 प्लस 1/4। सो ये अगर हमने ए के जो प्राइस के इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी और प्राइस के सेम रहने की पॉसिबिलिटी यहाँ से हटा दी, तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी रह जाएगी वो एक ही है, दैट द प्राइस इज गोइंग टू गो डाउन। सो दिस इज 1 माइनस इनकी जो आपने इसका एलसीएम ले लेंगे हम। सो वी हैव 4 प्लस 3, दिस विल बिकम 7/12 इज इक्वल टू 1 माइनस 7/12. So we are left with, the answer is 12 minus 7, 5/12, right? So 5/12 is the chance that the price of the stock will go down. So this was a typical question एंड एन इंटरेस्टिंग वन। उसको आपने डायरेक्टली नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बस आपको थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उसे कैलकुलेट करना है। सो इन द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन वील डू सम मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एडिशन थ्योरम।